Hello students, I am Priyanka. Welcome back to my channel. Today we will discuss the same chapter of business environment in Haryana, that is National Bank for Agriculture and Rural Development. So let us begin with the topic. This video covers the topics functions, role, achievements of NABARD and evaluation of NABARD. So let us discuss these two important topics: functions of NABARD, or we can say role of NABARD, or we can say achievements of NABARD, and evaluation of NABARD. So let us begin with the functions or role or achievements. First achievement of NABARD is refinance assistance to cooperative institutions and regional rural banks. NABARD provides refinance facility to state cooperative banks, regional rural banks, commercial banks, etc. for providing the short-term, medium-term and long-term loans at concessional rate of interest to the agricultural sector. मेन इम्पॉर्टेंट फंक्शन नाबार्ड का यही था कि रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना टू द कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस एंड रीजनल रूरल बैंक्स सो दैट कि उनकी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फंड्स के रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल किया जा सके एंड उन्हें लोन प्रोवाइड किया जा सके फॉर द शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म, but at concessional rate of interest, but only to the agriculture sector, cottage and village industries, handicrafts and rural crafts. So credit facilities provided for a period up to 3 years are called short term loans. नाबार्ड ने क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की टू द वेरियस एग्रीकल्चरिस्ट्स फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, that is called short term loans, and credit facilities provide की गई by the NABARD for a period between 3 to 5 years, which is called medium term loans, and credit facilities provide की गई between 5 to 10 years, which is called long term loans. तो नाबार्ड ने शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड किए, मीडियम टर्म लोन्स प्रोवाइड किए एंड लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड किए to the agriculture sector, cottage and village industries, handicrafts and rural crafts. So NABARD provides refinance assistance to RRBs, means regional rural banks, cooperative banks, commercial banks, to disperse crop loans to farmers. मेन फंक्शन नाबार्ड का यही था कि रीफाइनेंसिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस को, रीजनल रूरल बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को, सो दैट कि वो आगे फार्मर्स को क्रॉप्स के लिए लोन्स डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ. सो इट इज़ द मेन फर्स्ट फंक्शन ऑफ नाबार्ड. नेक्स्ट फंक्शन इज़ डेवलपमेंट ऑफ फार्म सेक्टर. As we know, farm sector includes agriculture and allied activities. Allied activities like irrigation, dairy, sheep, goat, rearing, fishing, forestry, plantation or horticulture, etc. So NABARD provides refinancing facilities to institutions which are engaged in providing the farm credit. सो मेन फंक्शन नेक्स्ट नाबार्ड का यही था कि रीफाइनेंसिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना उन इंस्टीट्यूशंस को जो कि इन्वॉल्व हैं इन प्रोवाइडिंग द फार्म क्रेडिट. फार्म क्रेडिट मींस लोन्स प्रोवाइड करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं, बट ओनली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फार्म सेक्टर. एंड फार्म सेक्टर में हम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इंक्लूड करेंगे? एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़. तो मेन फंक्शन नाबार्ड का यही था कि फार्म क्रेडिट जो प्रोवाइड कर रही हैं इंस्टीट्यूशंस, उनको मैक्सिमम लोन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना. सो फार्मर्स कैन गेट लोन्स एट कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर बाइंग द एग्रीकल्चरल इनपुट्स, फार्म इक्विपमेंट्स, सेटिंग अप माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स. तो मेन फंक्शन नेक्स्ट नाबार्ड का यही था कि डेवलपमेंट करना फार्म सेक्टर की. फार्म सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए मैक्सिमम लोन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना टू द various institutions who are engaged in providing the farm credit.
सो फार्मर्स को उन्होंने लोन दिया एट कंसेशनल रेट्स ऑफ इंटरेस्ट सो दैट कि वो अपने एग्रीकल्चरल इनपुट्स को ईज़िली परचेज़ कर पाएँ, फार्म इक्विपमेंट्स को परचेज़ कर पाएँ एंड माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर पाएँ, उन्हें सेटअप कर पाएँ। Next comes development of non-farm sector. NABARD also takes measures for the development of non-farm sector which mainly includes small and micro enterprises, handicrafts, handlooms, etc. NABARD provides refinancing facilities to the cooperative institutions, RRBs, commercial banks for providing the liberal credit to the non-farm sector in the rural areas. फार्म सेक्टर के डेवलपमेंट के साथ साथ अब नाबार्ड ने सेकंड फंक्शन क्या परफॉर्म किया कि नॉन फार्म सेक्टर की भी डेवलपमेंट हो। सो नाबार्ड ने कुछ वेरियस इनिशिएटिव्स लिए, मेजर्स लिए सो दैट कि फार्म सेक्टर के साथ साथ नॉन फार्म सेक्टर की भी डेवलपमेंट हो पाए। एंड नॉन फार्म सेक्टर includes small and micro enterprises, handicrafts, handlooms, etc. सो नाबार्ड ने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की टू द कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस, आरआरबीज, कमर्शियल बैंक्स सो दैट कि ये बैंक्स और ये इंस्टीट्यूशंस लिबरल क्रेडिट प्रोवाइड कर सके टू द नॉन फार्म सेक्टर इन द रूरल एरियाज। सो इन नॉन फार्म सेक्टर नाबार्ड रन्स टू स्कीम्स, कंपोजिट लोन स्कीम एंड सॉफ्ट लोन असिस्टेंस स्कीम। सो इस पर्पज़ के लिए नाबार्ड ने 2 स्कीम्स को सेटअप किया। अंडर कंपोजिट लोन स्कीम रीफाइनेंस फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड टू मीट द फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेज सेटअप इन रूरल एरियाज। कंपोजिट लोन स्कीम में रीफाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड की टू द फार्मर्स और टू द स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेज which are set up in the rural areas so that कि वो अपने fixed और working capital requirements को fulfill कर पाएँ। And under soft loan assistance scheme, NABARD provides refinance facility to provide finance assistance to the prospective entrepreneurs who have requisite skills and talent but lack monetary resources. एंड सॉफ्ट लोन असिस्टेंस स्कीम के अंडर नाबार्ड ने रीफाइनेंस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की उन एंटरप्रेन्योर्स को जिनके पास रिक्विजिट स्किल्स तो हैं, टैलेंट तो हैं, बट जिनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं हैं। सो अंडर सॉफ्ट लोन असिस्टेंस स्कीम नाबार्ड ने फाइनेंशियली हेल्प किया उन प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स को who have skills and talent but lack necessary monetary resources. So next main function नाबार्ड ने क्या परफॉर्म किया? डेवलपमेंट ऑफ नॉन फार्म सेक्टर। Next, strengthening the rural infrastructure. NABARD runs 2 schemes, Rural Infrastructure Development Fund and NABARD Infrastructure Development Assistance, to provide liberal credit to the state government, state-owned institutions for developing the rural infrastructure. रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए नाबार्ड ने 2 स्कीम्स को रन किया। फर्स्ट इज़ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड एंड नेक्स्ट इज़ नाबार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट असिस्टेंस, सो दैट कि इन स्कीम्स के अंडर लिबरल क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएं टू द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट ऑन्ड इंस्टीट्यूशंस सो दैट कि वो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर पाएँ। So NABARD provides liberal funds for the infrastructure projects like irrigation, rural roads, bridges, food protection, warehouses, etc. So NABARD ने इस पर्पज़ के लिए 2 schemes को रन किया in order to develop the rural infrastructure. So it is another main function of NABARD to strengthening the rural infrastructure. Next main function or achievement of NABARD comes strengthening the primary agricultural credit societies. NABARD has taken an initiative to develop primary agricultural credit societies. Primary agricultural credit societies provides training about modern agricultural methods using the modern technology.
So for this purpose, NABARD is providing assistance to primary agricultural credit societies under Producers Organization Development Fund. सो मेन फंक्शन नाबार्ड का नेक्स्ट यही था कि प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ को और ज़्यादा इम्प्रूव करना, स्ट्रेंथन करना, स्ट्रॉन्ग करना. सो इस पर्पज़ के लिए नाबार्ड ने ट्रेनिंग प्रोवाइड की about the modern agricultural methods by using the modern techniques. So इस पर्पज़ के लिए प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट फंड भी सेटअप किया गया सो दैट कि मैक्सिमम अवेयरनेस क्रिएट कर पाए नाबार्ड regarding the modern agricultural methods using the modern techniques. So मेन नेक्स्ट फंक्शन नाबार्ड का था कि प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना बाय प्रोवाइडिंग देम ट्रेनिंग about the modern agricultural equipments or methods by using the modern technology. Next, NABARD warehousing scheme. NABARD launched NABARD warehousing scheme for providing the concessional loans to the public and private sector to construct cold storages and warehouses. नेक्स्ट मेन अचीवमेंट नाबार्ड की क्या रही? नाबार्ड ने लॉन्च की नाबार्ड वेयर हाउसिंग स्कीम जिसमें कंसेशनल लोन्स प्रोवाइड किए गए टू द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर सो दैट कि वो कोल्ड स्टोरेजेस और वेयर हाउसेस को कंस्ट्रक्ट कर पाएँ. एंड द मेन एम ऑफ दिस स्कीम इज़ टू इंक्रीज द स्टोरेज कैपेसिटी फॉर द एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़. मेन एम इस स्कीम का क्या था? स्टोरेज कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना for the agricultural commodities. Under this scheme, priority in funds allocation is given to the storage projects in eastern and northeastern states. So इस scheme के under priority दी गई in the funds allocation is given to the storage projects. It means इस scheme के under investment की गई funds की in the storage projects so that कि हम storage capacity को increase कर पाएँ for the agricultural commodities. Next main achievement comes strengthening the central cooperative banks. NABARD provides direct lending facilities to the central cooperative banks through the state cooperative banks. NABARD का मेन फंक्शन क्या था कि लेंडिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना. इट मीन्स लोन असिस्टेंस प्रोवाइड करना टू द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स. किसके थ्रू करना? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के थ्रू. These loans are provided to the central cooperative banks for lending to farmers, traders, artisans, craftsmen, etc. for providing various purposes like working capital requirements, minor irrigation, farm equipment, storage, packaging, marketing, crop loans, etc. सो नाबार्ड ने लेंडिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स को सो दैट कि सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स को वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाए. सो लोन्स प्रोवाइड किए गए टू द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक सो दैट कि वो फर्दर आगे इन लोन्स को प्रोवाइड कर पाएँ टू द वेरियस फार्मर्स, आर्टिजन्स, क्राफ्ट्समैन डिफरेंट पर्पसेस के लिए. और वो पर्पसेस क्या हो सकते हैं? लाइक वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना, माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को सेटअप करना, फार्म इक्विपमेंट्स को परचेज़ करना, स्टोरेज वेयर हाउसेस कंडक्ट करना, पैकेजिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए, क्रॉप लोन्स के लिए. सो डिफरेंट इन पर्पसेस के लिए मेन फंक्शन क्या था नाबार्ड का कि सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स को क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना सो दैट कि वो उन क्रेडिट और लोन्स को फर्दर आगे फार्मर्स को प्रोवाइड कर पाएँ. सो नेक्स्ट मेन अचीवमेंट क्या था नाबार्ड का कि सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना. नेक्स्ट, सुपरविजन ऑफ RRBs एंड कोऑपरेटिव बैंक्स और रेगुलेटरी फंक्शंस. Banking Regulation Act 1949 empowers NABARD to conduct inspection of state cooperative banks, central cooperative banks and RRBs. सो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर ये पार दी गई नाबार्ड को सो दैट कि वो कंडक्ट कर पाएँ इंस्पेक्शन किनकी? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स की, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स की एंड
रीजनल रूरल बैंक्स की. So for this purpose, NABARD conducts periodic inspection of state level cooperative institutions. Such an inspection is done to protect the interest of distributors, to ensure the compliance of guidelines issued by the NABARD, government, RBI, to improve the performance of these institutions. सो एक इंस्पेक्शन कंडक्ट की गई बाय नाबार्ड सो दैट कि वो डिफरेंट डिपॉजिटरीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाए एंड ये इंश्योर कर पाए कि जो नाबार्ड ने, जो गवर्नमेंट ने या जो आरबीआई ने डायरेक्शंस और गाइडलाइंस इश्यूज़ की हैं उनके अकॉर्डिंग ही काम कर रही हैं ना ये इंस्टीट्यूशंस. And to ensure the conformity with the provisions of the relevant laws, regulations, and ये ensure करने के लिए कि जो different laws हैं, regulations हैं उनको follow किया जा रहा है या नहीं, and to suggest the ways for strengthening these institutions to enable them to work more efficiently in the area of agriculture and rural development. And नाबार्ड का मेन फंक्शन ये था कि सुपरवाइज़ करना इन इंस्टीट्यूशंस को एंड उनको वेज सजेस्ट आउट करना सो दैट कि वो अपने इंस्टीट्यूशंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं एंड मोर एफिशिएंटली वो और ज़्यादा अच्छे से काम कैसे कर सकते हैं इन द एरिया ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. नेक्स्ट, क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट. अंडर क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट, regional rural banks and cooperative banks are required to sanction the loan within the board guidelines issued by the NABARD from time to time. इस स्कीम के अंडर जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं और जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उन्हें ये इंश्योर करना होगा कि जब उन्होंने लोन्स प्रोवाइड करने हैं टू द वेरियस पार्टीज़ तो उन्हें विद इन द ब्रॉड गाइडलाइंस ही इशू करने हैं उन लोन्स को जो कि इशू किए होंगे नाबार्ड ने फ्रॉम टाइम टू टाइम. सो बिफोर सेंक्शनिंग द लोन सेंक्शन करने से पहले इन बैंक्स को सेटिस्फाई करना है खुद को अबाउट द फाइनेंशियल वियाबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बोरोवर एट्सेट्रा, सो एज टू इंश्योर द बेटर रिकवरी ऑफ लोन्स. सो लोन्स प्रोवाइड करने से पहले इन बैंक्स को अच्छे से चेकआउट करना है पहले कि फाइनेंशियल वियाबिलिटी क्या है एक प्रोजेक्ट की, क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है एक बोरोवर की, सो एज टू इंश्योर द बेटर रिकवरी ऑफ लोन्स. जितनी ज़्यादा क्रेडिट वर्दीनेस होगी अच्छी बोरोवर की उतना ही बेटर रिकवरी होगी लोन की. सो इट बिकम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दीज बैंक्स टू first satisfy themselves about the financial viability of the project and credit worthiness of the borrower. Next, rural housing refinancing scheme. NABARD provides refinancing facility to eligible banks engaged in providing the credit facilities for rural housing in the rural areas. सो नाबार्ड का नेक्स्ट मेन फंक्शन और रोल क्या था कि रूरल एरियाज़ में रूरल हाउसिंग की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना. सो हाउसिंग इन द रूरल एरियाज़ फॉर बोथ द फार्मर्स एंड नॉन फार्मर्स लीड्स टू द ओवरऑल रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया. सो नाबार्ड प्रोवाइड्स रीफाइनेंसिंग फैसिलिटीज़ टू द वेरियस फार्मर्स एंड नॉन फार्मर्स सो दैट कि रूरल एरियाज़ की डेवलपमेंट हो पाए. सो इस पर्पज़ के लिए नाबार्ड ने डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की लाइक रूरल हाउसिंग स्कीम भी सेटअप की, रूरल हाउसिंग की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की टू द वेरियस फार्मर्स एंड नॉन फार्मर्स सो दैट कि ओवरऑल रूरल डेवलपमेंट हो पाए इन इंडिया. नेक्स्ट, अदर फंक्शंस. कुछ वेरियस फंक्शंस भी परफॉर्म किए नाबार्ड ने. फर्स्ट इज़ मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. इस पर्पज़ के लिए नाबार्ड ने अम्ब्रेला प्रोग्राम रन किया फॉर द मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. ये एक ऐसा प्रोग्राम था जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें कवर की गई लाइक अवेयरनेस जनरेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, सब्सिडी, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एट्सेट्रा. सो इस स्कीम का मेन एम क्या था कि नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करना, यूटिलाइजेशन करना फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरियाज़. नेक्स्ट, प्रमोटिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट.
नाबार्ड मेंटेन्स रूरल इनोवेशन फंड, जिसका मेन पर्पस क्या था, रिसर्च को प्रमोट करना इन द वेरियस एरियाज रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट किया गया। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज। कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड की टू द वाइड रेंज ऑफ क्लाइंट्स। सो कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करने से हेल्प हुई डिफरेंट क्लाइंट्स को कि वो इजीली अपनी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स प्रिपेयर कर पाएँ, फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स को प्रिपेयर कर पाएँ। सो इट प्रमोट्स कमर्शियल एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट्स एंड अदर प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू द रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम इनिशिएटिव लिया गया नाबार्ड के थ्रू, किसान क्रेडिट स्कीम को लॉन्च किया गया। सो Kisan Credit Card Scheme is a credit card which is issued by the banks to the farmers for availing the credit facilities as per their requirements. So इस स्कीम के अंडर एक क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किया टू द वेरियस फार्मर्स सो दैट कि वो अपने क्रेडिट फैसिलिटीज़ को अवेल कर पाएँ एज पर देयर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट, वुमेन एम्पावरमेंट। NABARD has started special programs for the women empowerment like Women Development Cell, marketing of non-farm products made by the rural women, self-help groups, बैंक linkage programs। सो इन सभी प्रोग्राम्स को सेटअप किया गया, रन किया गया सो दैट कि अवेयरनेस क्रिएट हो पाए अबाउट द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वुमेन एम्पावरमेंट। सो ये कुछ फंक्शंस थे नाबार्ड के। नेक्स्ट कम्स evaluation ऑफ नाबार्ड। As we know, NABARD has played significant role in the agriculture and rural development by providing the refinancing facilities to the agriculture and rural credit institutions and by initiating the various rural development programs. NABARD ने एक vital role play किया, crucial role play किया in agricultural and rural development by providing the refinancing facilities to the various institutions so that कि रूरल डेवलपमेंट हो पाए इंडिया में। सो इसके लिए नाबार्ड ने कुछ वेरियस रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी रन किए। सो वेरियस इनिशिएटिव्स लिए नाबार्ड ने सो दैट एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट हो पाए इंडिया में। बट मेजर प्रॉब्लम क्या रही नाबार्ड की? Lack of healthy credit delivery on account of poor performance of RRBs and increasing interference of state government in the functioning of cooperative banks. And जो employees थे नाबार्ड में जो कि different offices में थे which are located in the various cities, वो aware नहीं थे regarding the rural areas और regarding the problems of rural areas। सो पुअर परफॉर्मेंस की वजह से और इंक्रीजिंग इंटरफेरेंस की वजह से स्टेट गवर्नमेंट की एंड एम्प्लॉयज़ की लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से जो नाबार्ड है वो इतना अच्छे से वर्क नहीं कर पाया इन द रूरल एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। बट स्टिल डिस्पाइट दीज लिमिटेशंस जो नाबार्ड का रोल था, इट कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड इन प्रमोटिंग द एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। बट डिस्पाइट दीज लिमिटेशंस जो नाबार्ड है उसने अच्छा रोल प्ले किया इन प्रमोटिंग द एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। So this is all about our today's video. In this video we'll discuss functions or we can say role or achievements of NABARD and evaluation of NABARD. I hope you like this video. If you like my video, please subscribe my channel. So thank you so much for your cooperation and attention. Thank you so much.